مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مسلح افواج سے متعلق مجوزہ ترمیم کی منظوری۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم پر اتفاق۔ فاروق ایچ نائک کی زیر صدارت اجلاس۔ 27ویں ترمیم کے بنیادی مسودے کی منظوری کل سینٹ میں پیش ہوگا۔ صدر کو تاحیات استثناء دینے پر اصولی اتفاق۔ کمیٹی نے آئینی عدالتوں کے قیام کی شق کی منظوری دے دی۔ زیر التوا مقدمات کے فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی تجویز۔ ANP کی خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم کمیٹی میں پیش۔ خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر ہٹا کر پختونخوا رکھنے کی تجویز۔ MQM کا بلدیاتی نمائندوں کے فنڈ سے متعلق ترمیم کا مطالبہ۔ PAP کی بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کی تجویز۔ ANP کا صوبے کے نام کو تبدیلی کا معاملہ مؤخر۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستوں کی تعداد میں اضافے کا معاملہ PM ہاؤس میں زیر غور آئے گا۔ MQM کا بلدیاتی انتخابات کو آئینی کور دینے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ PTI، JUI، MWM اور PK میپ کے رہنما شریک نہیں ہوئے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا آئینی ترمیم کے بنیادی مسودے کی منظوری ہو چکی، حکومتی اتحادی جماعتوں کی تجاویز پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ کچھ ترامیم کا اختیار کمیٹی نے مجھے اور وزیر قانون کو دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے احکامات پر مثبت یو ٹرن۔ وزیر اعظم کو استثناء دینے کی ترمیم واپس۔ ایکس پر لکھا دورہ آذربائیجان سے واپسی پر وزیر اعظم کے استثناء سے متعلق ترمیم کا معلوم ہوا۔ بتایا گیا میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے ترمیم سینٹ میں پیش کی، ان کے خلوص کا شکریہ۔ وزیر اعظم کے استثناء کی ترمیم کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کے اشائیے میں اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز وفاقی وزراء شریک۔ اعتراضات کے باعث ANP کے ایک سینیٹر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کی طرف سے کل سینیٹرز کو سینٹ لاؤنج میں ناشتہ بھی دیا جائے گا۔ ترامیم کی مخالفت ووٹ سے کریں، سیاست سے نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اپوزیشن کو مشورہ۔ کہا جمعیت علماء اسلام کو آ کر بیٹھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کو استثناء سے متعلق علم ہوا تو فوری شک نکالنے کی ہدایت دی۔ MQM کے 140A کے حوالے سے اور بلوچستان کے نشستوں میں اضافے پر بات چیت ہونی ہے۔ مزید کہا صدارت سے ہٹنے کے بعد تاحیات اعزازی عہدہ رہے گا۔ یہاں صدر مدت پوری کرتا ہے تو سمن شروع ہو جاتے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر 27ویں ترمیم کے خلاف کھل کر بول پڑے۔ سینٹ اجلاس میں بولے ترمیم سے سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا جائے گا۔ PTI ترمیم کی کھل کر اور بھرپور مخالفت کرے گی۔ یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئینی ترمیم ایسی ہے جیسے کسی عمارت کو تباہ کر رہے ہیں۔ آئین کا بنیادی اصول سویلین بالادستی ہے۔ آئینی عدالت صرف ویئر ہاؤس ہوگی۔ ایگزیکٹو ہمیشہ سے عدالت کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ زہر ججز کا ٹرانسفر ہے۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ 18ویں ترمیم سے آئین کو بحال کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم آئین کی موت تھی۔ 27ویں ترمیم آئین کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ یہ وضوح پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ۔ فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا۔ آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں، یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا۔ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 27ویں ترمیم کے خلاف بڑی تحریک چلانے کا اعلان۔ اپوزیشن رہنماؤں نے 27ویں ترمیم کو پاکستان کی بنیادوں پر حملہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے کہا چھٹی کے دن آئین پر حملہ کیا گیا، یہ بھی 9/11 ہے۔ فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا 27ویں ترمیم میں ساری پاور ایک بندے کو دی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسی ہفتے اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس بھی بلائی جائے گی۔ اپوزیشن سینیٹرز کے 27ویں آئینی ترمیم کے طریقہ کار پر سوالات۔ اسد کیسر نے آئینی ترمیم کو ملک کے خلاف بڑی سازش قرار دے دیا۔ کہا آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف علامتی احتجاج کریں گے۔ سینیٹر اعظم سواتی نے کہا ہم آئین اور قانون کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عجلت میں بنایا گیا کالا بل ہے، یہ قومی مفاد میں نہیں۔ آپ ایک دن کہیں گے ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔
सेनेटर नूरुल्लाह कादरी बोले, जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले होने जा रहे हैं, जजेस के तबादले डीसी एसी की तरह किए जा रहे हैं, वजह सिर्फ एक आदमी का खौफ है। सही साहब जिस असेंबली में भी रहे हैं वो कहते हैं असेंबली जाली है, लेकिन हर उस असेंबली का हिस्सा रहे हैं जिसको वो जाली कहते रहे। अगर ऐसी जाली हैं तो इनका हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत थी आपको? और बार बार एहतजाज, बार बार कहना जी मैं बात यह है कि आप पार्लियामेंट का अगर हिस्सा है तो पार्लियामेंट में रोल प्ले करें, पार्लियामेंट से दौड़े नहीं। दौड़ते इसलिए हैं कि आपके पास आर्गूमेंट नहीं है। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही आप सियासी तौर पे माइनस होते जाएंगे। पीटीआई जितना पार्लियामेंट से दूर होगी उतना सियासत से माइनस होगी। तलाल चौधरी का मशवरा, कहा पार्लियामेंट का हिस्सा है तो पार्लियामेंट से दौड़े नहीं। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने बहुत से अमूर पर इतफाक कर लिया, सारी चीज़ें रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश होंगी। सेनेटर परवेज़ रशीद बोले, अली ज़फ़र ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, वो रुख नहीं दिखाया जिसमें अदलिया को पार्टी का आकार में बदलने की कोशिश हुई। पीपल्स पार्टी सेनेटर मसरूर अहसन का तहरीक इंसाफ पर तंज, कहा यहाँ आप तजावीज़ देते हैं, मुज़ाकरात किसी और से करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मेरा सिपा सलार भारत को शिकस्त दे रहा है और राफेल तैयारे गिरा रहा है। पाकिस्तान को आईनी तरमीम समेत 243 में तरमीम की जितनी आज ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। अफगानिस्तान का इस्तांबुल मुज़ाकरात में ताउन से राह फरार। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में बातचीत का तीसरा दौर खत्म। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तालिबान रजीम ने दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम से इनकार किया। अफगान वफ़द ने मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी इल्ज़ामात से ख़राब किया है। दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद से गुरेज किया। तालिबान हुकूमत ने अब तक महज वादे किए हैं, अमली इक़दाम नहीं उठाए। तालिबान हुकूमत ने दहशत गर्दी के असल मसले को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तालिबान हुकूमत में कुछ अनासर बैरूनी माली मदद से पाकिस्तान में मुखालिफ बयानियाँ चला रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा का इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वाज़ेह और दो टुक मौक़िफ़। सिफारती ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हमारे मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पज़ीराई मिल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पर पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक डेला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया गुफ्तगू की गई। पीटीआई के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज। पाकिस्तान जो है ना, जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने बॉर्डर्स पर और इसी तरह ट्राइबल एरियाज में और केपी में जितनी कोशिशें की है अमन अमान के क़याम के लिए, तो मेरे ख्याल में ये मिसाली है और उन्होंने शहादत दी है। और अगर इसी तरह बयानात हम जारी करेंगे तो इससे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उससे हौसले शिकनी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के बेबुनियाद और नफरत अंगेज़ बयान पर सूबे की आवाम की शदीद मजम्मत। कहा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मसाजिद के हवाले से नहायत गलत बयान दिया जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा वज़ीर आला का मसाजिद और फ़ौज के बारे में बयान नामुनासिब है। पीआईए के तनाज़ात के बादलों में परवाज़। इंजीनियर्स के एहतजाज के छठे रोज़ मज़ीद 10 परवाज़ें मनसूख। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर ख्वार। पीआईए तैयारे की गलत रनवे पर लैंडिंग का मामला। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की हतमी रिपोर्ट तैयार। लाहौर कंट्रोल टावर समेत कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर जिम्मेदार करार। 17 जनवरी 2025 को तैयारा लाहौर एयरपोर्ट में गलत रनवे पर लैंड कर गया था। NCCIA करप्शन स्कैंडल में मजीद हकाइक सामने आ गए। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स से 1 करोड़ 50 लाख रुपए माहाना वसूली का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर रावलपिंडी समेत 13 अफराद शामिल। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम रकम फ्रंटमैन हसन अमीर के जरिए वसूल करती थी। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर डील की गई। SHO मियां इरफान ने डील 4 करोड़ रुपए में फाइनल की। डिप्टी डायरेक्टर सलमान अलवी भी टीम का हिस्सा बन गए। रावलपिंडी के कॉल सेंटर से 14 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया।
छापे के दौरान 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम रिकवर कर ली गई। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। नापरा की मंजूरी के बगैर महंगे AMI मीटर्स की तनसीब, वजारत तवानाई और डिस्कोस सरबराहों से जवाब तलब। डिस्कोस को बगैर मंजूरी 40 लाख AMI मीटर्स नस्ब करने पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नापरा ने सारिफीन की शिकायत पर कि इलेक्ट्रिक को ठुशुकास नोटिस जारी किया। डिस्कोस ने वजारत तवानाई की हिदायत पर 40 लाख AMI मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू किया। नापरा की पेशगी मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। AMI मीटर्स 20,000 रुपये में फरोख्त किए गए, जिससे सारिफीन पर इजाफी माली बोझ पड़ा है। मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं। मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने अजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेद अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। सेनेट में इकबाल डे की निस्बत से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मतन के मुताबिक इकबाल ने जिदोजहद, मसावात और बराबरी का पैगाम दिया। मुफक्कर, फ़लसफ़ा दान अल्लामा इकबाल को हाउस खराज तहसीन पेश करता है। कौमी क़यादत का शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। उनका विजन आज भी हमारी तरक्की का रास्ता मुतय्यन करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी की शम्मा रोशन की। आलमी अमन के लिए अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा रहेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इकबाल का आज़ाद और तरक्की पसंद कौम का तसव्वुर आज की नस्ल में भी यकीन पैदा करता है। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इकबाल के उस ख्वाब को आगे बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि इकबाल के अफ़कार पर अमल से ही पाकिस्तान फ़िलाही रियासत बन सकता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार ने हर दौर के नौजवान को अपनी शनाख्त से रोशनास करवाया है। रावलपिंडी में नान रोटी की कीमत बढ़ गई। नान 30 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए का कर दिया गया। सादा रोटी 14 के बजाय 15, खमीरी रोटी 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। रोगनी नान पराठे की कीमत भी 50 से बढ़कर 60 रुपए। नान भाइयों ने नान रोटी की कीमत बढ़ाकर हड़ताल खत्म कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का BRT पेशावर का दौरा। टिकट लेकर आम शहरियों की तरह बस में सफ़र किया। चीफ सेक्रेटरी और मुंतखब अरकान असम्बली ने भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। शहरियों ने वज़ीर आला को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया और सेल्फियाँ बनाईं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्री दरबार में माथा टेकनी और इबादत में मसरूफ। भारत से आए 2000 यात्री भी आज करतारपुर में क़याम करेंगे। भारतीय यात्रियों का कहना था कि दुनिया घूमे लेकिन पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं और नहीं मिला। करतारपुर में UK यूनाइटेड और कैनेडियन बुल्स के दरमियान कबड्डी मैच। भारतीय फौज की नाअहलियों का एक और सबूत। राजस्थान के जिला जैसलमेर में फौजी मश्क के दौरान मिसाइल हदफ के बजाय करीबी गांव में जा गिरा। मिसाइल गिरने के बायस मुतादिद हलाकतों की इत्तला। सफ़ाक इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का अपना वतीरा बना लिया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले, मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब हमास ने मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मज़ीद एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल के हवाले करने के लिए हमास के पास सिर्फ 5 लाशें रह गईं। सदर ट्रम्प का एक बार फिर जनूबी अफ्रीका पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम। G20 इजलास का बाइकआउट करते हुए नायब सदर जेडी वेंस को भी वापस बुला लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। उनकी ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं।
شامی صدر احمد الشرا سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے. کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. امریکہ آمد پر شامی صدر نے سینٹ کام کے کمانڈر کے ساتھ باسکٹ بال بھی کھیلی. احمد الشرا امریکہ کا دورہ کرنے والے پہلے شامی صدر ہیں. ڈنمارک کا 15 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ. ڈنمارک حکومت کے مطابق والدین کو 13 سال تک کے بچوں کو کچھ پلیٹ فارمز تک رسائی دینے کی اجازت ہوگی. گزشتہ ماہ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے نوجوانوں کی ذہنی صحت کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا. بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے پر 22 لاکھ روپے جرمانہ. بھارت میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مہنگا ترین چلان. بھارتی شہری جرمانہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. پولیس کے مطابق چلان میں رقم کا اندراج غلط ہوا. شہری کو صرف 4000 کا چلان دینا ہے. برازیل کی ریاست پارانا میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی. 6 افراد ہلاک، 700 زخمی ہو گئے. گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، بجلی کے کھمبے زمیں بوس ہو گئے. لاکھوں افراد بجلی سے محروم. امدادی کارروائیاں اور ریسکیو کا عمل جاری.